Good morning, children. I am Arvind Soni, your English teacher from ABPS Rehla. Today I am going to start Unit 3rd, Section 3, The Ant Explorer. It's a poem. Poet Clarence James Dennis. Okay, now let's move on the main content of this poem. Section 3, The Ant Explorer. First, I am going to read this poem. After that, I will explain it line by line. Once a little sugar ant made up his mind to roam, to fare away, far away, far away from home. He had eaten all his breakfast, and he had his ma's consent to see what he should chance to see. And here's the way he went. Up and down a fern frond, round and round a stone, down a gloomy gully where he loathed to be alone, up a mighty mountain range 7 inches high, through the fearful forest grass that nearly hid the sky, but alone a broken bridge, bending in the moss, till he reached a dreadful desert that was feet and feet across. 'Twas a dry, deserted desert and trackless land to tread. He wished that he was home again and tucked up tight in bed. His little legs were wobbly. His strength was nearly spent. And so he turned around again, and here's the way he went. Back away from desert lands, feet and feet across, back along a broken bridge, bending in the moss, through the fearful forest grass, shutting out the sky, up a mighty mountain range 7 inches high, down a gloomy gully where he loathed to be alone, up and down a fern frond, round and round a stone. A daring ant, a wary ant, resolved no more to roam. He staggered up the garden path and popped back home. Clarence James Dennis. Okay, children. Now I am going to explain this poem. The Ant Explorer. Ant, it's a simple ant. You generally found in your home. And explorer. Explorer means something search in a new place, new things. जैसे जिनको कहते हैं कि नई चीज देखने का या फिर खोजने का एक जो जुनून होता है, that is explorer. Read this poem about a very adventurous and brave ant who went to see the world. यानी ये स्टोरी जो है वो बेस है एक ऐसे आंट की, सुगर आंट की, बिल्कुल छोटा सा ब्लैक कलर का आपने अपने घर में देखा होगा. उसकी एडवेंचरस एंड ब्रेव, वो कितनी ब्रेव है ये बताया गया कि उसे दुनिया देखने का उसका मन किया, तो वो घर से बाहर निकल गई और क्या देखा इसका यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. Once a little sugar ant made up his mind to roam. सुगर आंट, मैंने जैसा बताया था कि घर में आपके ये जनरली दिख जाएगा. Made up his mind, अपने दिमाग को तैयार किया. To roam. Roam means roaming, घूमना, यानी घर से बाहर निकल के दुनिया को देखने का उसका मन बना. To fare away and far to fare away, far away from home means वो घर से दूर, बहुत दूर जा करके देखना चाहती थी. ऐसा उसने अपना मन बनाया. अभी सिर्फ सोचा है, एक्सिक्यूट नहीं किया है.
He had eaten all his breakfast and he had his ma's consent. Ma's consent का मतलब हो गया वो with the permission of his or her mother. अपनी माँ का परमिशन, माँ की परमिशन लेकर के वो जाना चाहती थी. तो यहाँ पर ये भी शो करता है कि अगर हम कोई नई चीज करते हैं तो हमें अपने पेरेंट्स का जरूर कंसेंट ले लेना चाहिए कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ताकि उनको पता हो कि हाँ मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है. बहुत अच्छी बात है ये. तो ही हैड ईटन ऑल हिज ब्रेकफास्ट, उसने अपना ब्रेकफास्ट खा लिया है. एंड ही हैड हिज मास कंसेंट, और अपनी माँ की सहमति भी ले लिया है. कंसेंट मीन सहमति, परमिशन. टू सी व्हाट ही शुड चांस टू सी, मतलब वो ये देखने के लिए कि अब उसे मौका मिलता है वो क्या क्या देख सकती है. एंड हियर्स द वे ही वेंट, और वो जिस जिस रास्ते से निकलेगी वो नई नई चीजों को देखते हुए आगे बढ़ती जाएगी. अप एंड डाउन अ फन फ्रॉन. फन, it's a kind of plant. Look here, this one is fern. Front, a long leaf of a fern. Round and round a stone. एक बड़ा सा जो स्टोन है उसका चक्कर लगाते हुए. Down a gloomy gully where he loathed to be alone. Gloomy gully means desert, मतलब निर्जन एरिया. वेयर ही लोथेड, लोथेड मीन्स होता है डिसलाइक, नापसंद. टू बी अलोन, जहां उसे बिल्कुल अकेला रहना पड़ा, जो उसे पसंद नहीं था. अप अ माइटी माउंटेन रेंज 7 इंचेस हाई. 7 इंच उसके लिए माइटी रेंज हो गया माउंटेन का, केवल 7 इंच ही. थ्रू द फेयरफुल फॉरेस्ट ग्रास दैट नियरली हाइड द स्काई. उसके लिए थोड़ा सा भी, छोटा सा घास का भी अगर मैदान है तो उसके लिए तो फॉरेस्ट हो गया, क्योंकि चींटी होती कितनी छोटी सी है. तो ये चीज़ें जो हमारे लिए बिल्कुल सामान्य चीज़ें होती हैं और उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसके होने से, लेकिन एक चींटी के लिए जो अपने घर से पहली बार बाहर निकल रही है उसके लिए तो ये सारी चीज़ें नहीं हुई कि उसे राउंड बड़े से पत्थर मिले और थोड़ा एक गली जो बिल्कुल तेज़ ढाल वाली मिली, और माउंटेन रेंज जो लगभग 7 इंच हाई है. इस तरह की चीज़ें उसे, ये सारी चीज़ें, देखिए एक्सपेडिशन यही हुआ. एक्सप्लोर मीन्स नई नई चीज़ों को देखने का मौका मिलना. फिर यहाँ कह रहा है थ्रू द फियरफुल फॉरेस्ट ग्रास दैट नियरली हाइड द स्काई. और जो वो फियरफुल मतलब डरावना, थोड़ा ऐसा घास का जो जंगल था बिल्कुल आसमान को ढक लिया. जैसे अभी हमारे लिए जो घने जंगल होते हैं जहाँ हम जाते हैं, ऐसे जगह जहाँ पहाड़ी एरिया बेसिकली जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, और माउंटेन रेंज में जाते हैं जहाँ बड़े बड़े मतलब पेड़ होते हैं, तो जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो जो पेड़ होते हैं उनसे आसमान छिप सा जाता है बिल्कुल. सेम वही रिएक्शन यहाँ पर आंट का भी है, क्योंकि जब वो उस ग्रासी कह लीजिए फॉरेस्ट में जा रही है तो उसे आसमान नहीं दिखाई दे रहा है, आसमान छिप जा रहा है. आउट अलोन अ ब्रेकन ब्रिज. ब्रेकन, लुक हियर, अ टाइप ऑफ फर्न. यही फर्न का एक ब्रिज बन गया था जिसपे से वो चलकर पार होती है. बेंडिंग इन द मॉस. मॉस इट्स अ काइंड ऑफ फर्न. जो बड़ा फर्न का जो कह लीजिए लीफ है वो झुक करके एक ब्रिज बना दिया है जिससे वो पार हो गई. टिल यू रीच्ड अ ड्रेडफुल डेजर्ट दैट वाज फीट एंड फीट अक्रॉस. फिर उसके बाद वो कहाँ पहुंचती है? ड्रेडफुल डेजर्ट. ड्रेडफुल मीन्स होता है डरावना, भयानक. रेगिस्तान, रेगिस्तान, अगर रेगिस्तान में आप चले जाइए तो आपको चारों तरफ केवल, जैसे सी में आपको केवल पानी दिखाई देता है, उसी तरह से रेगिस्तान में चारों तरफ आपको केवल डेजर्ट ही डेजर्ट दिखाई देगा. आप किधर जाओ ये कंफ्यूजन होता है. इट वॉज, ये लुक हियर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टी वॉज. इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट वॉज. इज इट क्लियर? इट वॉज अ ड्राई डेजर्टेड डेजर्ट. डेजर्टेड मीन्स यहाँ पर सुनसान से है, निर्जन, सूखा और बिल्कुल एकांत, मतलब वहां कोई भी नहीं दिख रहा है, डेजर्ट एरिया. एंड ट्रैकलेस. ट्रैकलेस मतलब जैसे कि आपको जाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा. होता क्या है कि जब हम ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ केवल सैंड ही सैंड होता है, रेगिस्तान डेजर्ट होता है, तो वहाँ अगर आप मान लीजिए कोई जा भी रहा है तो कुछ देर के बाद फिर हवा, जैसे भी हवा का प्रेशर आता है बालू पे, तो वो जो हमारे ट्रैक पैर के निशान होते हैं उसे वो फिर से छिपा देता है. तो पता नहीं चलता है कि कौन सा रास्ता सही है, और वहाँ रास्ते बनते नहीं है क्योंकि वो सैंड होता है, बालू. थोड़ी देर तो बनेंगे वो, जब आप चलोगे तो आप देखोगे आपके पैरों के निशान दिखाई देंगे, बट जैसे ही हवा का झोंका आएगा उस निशान को वो मिटा देता है. तो इससे भी यही प्रॉब्लम हो रही है
कि ट्रैकलेस लैंड टू ट्रेड मीन्स चलने के लिए अब उसके पास है ही नहीं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, अब किधर तो जाए किधर जाए, कंफ्यूज हो गई वो। ही विश दैट ही वॉज होम अगेन, अब उसने विश किया, इच्छा अपनी जाहिर की कि अब मुझे वापस घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ रास्ता तो है ही नहीं, अब मैं आगे कहाँ जाऊँ। एंड टक्ड अप टाइड इन बेड, टक्ड मीन्स होता है जैसे आप कहीं लंबी यात्रा में जाते हो या कई दिन घर से बाहर आप रह लेते हो, तो जब घर पहुंचो तो मन करता है ना कि जल्दी से बेड पर जा करके सो जाए। तो ऐसा ही फीलिंग अभी इसको हो रहा है कि जैसे ही मैं घर पहुंचूं तुरंत जाके बेड में सो जाऊं। हिज लिटिल लेग्स वर वेबली, वेबली मीन्स जैसे आप चलते चलते लड़खड़ाने लगते हैं, दैट इज लड़खड़ाना। हिज स्ट्रेंथ वॉज नियरली स्पेंड, और जो उसके पास स्ट्रेंथ था यानी ताकत थी वो लगभग स्पेंड मीन्स यहाँ पर एग्जाल्ट मतलब थक के चूर हो जाना, वो बिल्कुल उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। एंड सो ही टर्न अराउंड अगेन, अब वहीं से वो फिर से वापस लौटती है। एंड हियर्स द वे ही वेंट, और जिस रास्ते से वो गई थी सारे रास्ते से वो रिटर्न होती है। बैक अवे फ्रॉम डिजर्ट लैंड फीट एंड फीट अक्रॉस, एक एक कदम चल के वो डिजर्ट लैंड को पार करती है। बैक अलोन अ ब्रेकन ब्रिज, ब्रेकन ब्रिज वही जो फर्न का जो लीफ था उस वो बेंड हो गया था, बेंडिंग इन द मॉस, उसको चढ़ के पार करती है। थ्रू अ फेयरफुल फॉरेस्ट ग्रास शटिंग आउट द स्काई, और फिर उसी जंगल में पहुंचती है जो फेयरफुल था, डरावना था, और अपने लीफ में वो आसमान को हाइड कर लेता था, छिपा लेता था। अप अ माइटी माउंटेन रेंज 7 इंचेस हाई, और वही विशालकाय पर्वत जो 7 इंच, सुनने में अजीब लग रहा होगा 7 इंच मतलब कुछ नहीं, बट उसके लिए माउंटेन माइटी माउंटेन रेंज था। डाउन अ ग्लूमी गली, वही उसी गली में फिर से आती है जो बिल्कुल निर्जन था। वेयर ही लोथेड टू बी अलोन, जो कि उसे वहां अकेलापन उसे पसंद नहीं था। अप एंड डाउन अ फन फॉन्ट राउंड एंड राउंड स्टोन, वापस जिस रास्ते से वो गई थी सेम उसी रास्ते से फिर से रिटर्न होती है। अ ड्रेरी आंट, ड्रेरी मीन्स उदास दुखी, अ वेरी थकी हुई आंट रिजॉल्व्ड नो मोर टू रोम, रिजॉल्व मीन्स होता है डिसीजन लेना, टेकिंग डिसीजन, उसने संकल्प लिया कि अब मुझे और नहीं घूमना है। ही स्टैगर्ड, स्टैगर्ड मीन्स स्टम्प मीन्स लड़खड़ाते हुए जाना। अप द गार्डन पाथ एंड पॉप बैक होम, पॉप्ड मीन्स अचानक, लड़खड़ाते हुए वो गार्डन पाथ से अपने घर की ओर जा रही थी और अचानक बैक होम वो अपने घर पहुंच जाती है। पोएट क्लरेंस जेम्स डेनिस। Okay children, now I stop here. Hope all of you have understood this poem, and of course you have to learn these hard words. Next class I will solve the exercise of this poem. Till then, bye bye, stay home, stay safe.